Physical fitness, such an important part of one's life. It provides strong bones and muscles, leads to better health and overall well being, and eventually reduces the risk of various health problems and diseases. As they say, health is wealth. Hello, ladies and gentlemen, and welcome to Creators on Graphy. I'm your host, Rishabh, and today I have with me someone on the show who eats, breathes, and sleeps fitness. He is someone who's been in the industry for over 2 decades now. He's an international bodybuilding coach, a diet and nutrition consultant, and is also someone who has represented India on a global scale as a powerlifter. His name is Rajat Goel. So let's meet him, understand his journey, and see what his graphy is all about. This is your pro knowledge coach, Rajat Goel. Guys, I believe that your responsibility is first towards your body. So I believe in following a good nutrition plan and a good workout plan, and this is the first thing I do in the morning every day. So let me give you a glimpse what kind of workout I follow. Guys, now I think Rishabh has some questions for me related to nutrition and workout. So Rishabh, please fire. Hi, Rajat. Welcome to the show. Hi, how are you? I'm doing well. How are you? I'm doing great. Thank you. Great. So, Rajat, firstly, to get started, we would like to know, tell us a little bit about your journey and, how you got into this profession. How did you get into this field? Just tell us a little bit about that. So it's been around now 21 years I'm doing something like this. So it didn't start as a profession as such, but yes, it started as a passion. So in the year 2000, when I was in 10th class, मेरे PT coach ने gym नया open किया था, that they invited everybody from the school to just come and have a 2-day trial in the gym. So when I went for 2 days, तो 2000 मार्च 2000 में मैं गया था और आज मार्च अप्रैल 2021 आ गई. मैं जब गया हूं आज तक वापस वहां से नहीं आ पाया हूं. So it's been 21 years I am into this field professionally. If you say I came to Delhi in 2014, and since then professionally I'm into this field in terms of I started as a normal trainer, then I started coaching for stage, and then I started my powerlifting. I started educating people, and I started just flourishing the nutrition plans and teaching people about nutrition, how to go about their nutrition. I have also done ACE certification. I did it in 2015. I cleared it in the very first attempt. So it is something, it was a big journey in terms of professional and personal level both. Fantastic. And now I'm, yes, definitely looking forward to impart my knowledge to all the people who are actually interested to know what exactly the fitness and nutrition is. Yes, that's great to know. So, as I was reading about you, I got to know that you were someone who was, pursuing engineering and someone who was working actually in the corporate world. So, when did that moment come when you actually decided that, I don't want to do any more of this and this is actually my passion and I want to follow this? Yeah, so in 2003, I took admission in BTech in Ghaziabad, NCR, and in 2006 only, BTech normally 4 साल का होता है, but in the third year only, I got placed at Infosys. So my interview went well and everything went well. So third year में ही मेरा placement हो गया था, and from 2007 till 2009 I served at Infosys. But wherever I was, even during my school, my college, my Infosys days and all, I never left my passion for lifting and maybe playing sport and whatever. तो वहां से मेरे को ये समझ में आ गया कि नहीं यार, this is not something Rajat Goel is made for. Just sitting in front of computer, to be very frank, and just doing coding and solving issues, and then again coming back, sleeping, and again sitting in front of computer. So I left in 2009. But in 2009, I still was not a fitness professional. I was actually training people, जैसे friends होते हैं normally, उनको कुछ बता देना या उन्हें plan समझा देना, उनकी help कर देना. That was that, but that was not related to professional level again.
So 2009, I started my own business at my hometown, and till 2014, I did that. Then again, the same thing occurred inside me. No, Rajat, you are not made for this. You are made for something different. Then I did. I just didn't think anything else. In 2014, one day I told my parents, "मुझे ना कुछ करना है. I want to do something, and I will go to Delhi and do something. I don't know what will I do, but yes, I will do something different, so that for the family also एक line थोड़ी open हो जाए in the future for the future generations." So I just came to Delhi in 2014 and ended up just pursuing my passion only. Yeah. Right. So, like you mentioned, that you've been doing this since the longest time. It's been more than 20 years now, and your family, everyone's a part of it. So, how do you kind of react to all this, fame that you've got? You've represented India on a global scale. There are a lot of people who know you today. You have so many followers on Instagram. You've built a community of your own. So, how does all that feel to you? It feels great, but yes, there is still a lot to be done. अभी तो एक तरीके से शुरुआत में बोलूंगा, शुरुआत है, लेकिन काफी ऊंचा जाना है. और यस, मेन मोटिव यही है कि जो भी मिथ्स हैं रिलेटेड टू फिटनेस, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन, वो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को क्लियर करूं. एंड आई वांट पीपल टू बी रिसेप्टिव अबाउट इट आल्सो, so that it helps them, and yes, it helps them, their friends and family, and they can impart that knowledge to the future generation also. Right. All right. So, Rajat, like you mentioned about myths, right? So, could you just tell us what are some common myths that you have really seen or people talking about that you want to really debunk on this platform and say that नहीं यार ये ठीक नहीं है, ये जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है. Is there anything specifically that you want to talk about? So there is one thing that is something everybody should learn and everybody should understand, that fitness is not weight loss. जब हम फिटनेस की बात करते हैं ना, तो लोग यही सोचते हैं कि यार अभी तो मैं पतला हूं, मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. सो पतला इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू फिटनेस. अगर आप मोटे हो जाते हो तभी आपको ट्रेनिंग करनी है, या तभी आपको डाइट फॉलो करना है, या तभी आपको अच्छा खाना है. दिस इज द बिगेस्ट मिथ, एटलीस्ट इन इंडिया, through which people are suffering. तो ये जिस दिन मिथ खत्म होगी ना, तो लोगों को एक्चुअल फिटनेस का मतलब पता चलेगा. सो फिटनेस इज बेसिकली वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अ डॉक्टर्स प्रोफेशन. कैसे वो डिफरेंट है? A doctor's job is to cure a disease. A fitness professional job is to not let that disease happen to a specific person, right? हम ये चाहते हैं कि आपको वो नौबत ही ना आए कि आप डॉक्टर के पास जाओ. लेकिन अगर आप अपने आप को ऐसा बना लेते हो कि आपको डॉक्टर की विजिट करनी पड़ेगी, then yes, you have to pop in the pills, you have to take up the medication. So fitness is basically a healthy mind, healthy body, healthy emotions, everything from inside your digestive system, your respiratory system, your nervous system, everything is working fine. This is fitness. So fitness is not dieting, fitness is not weight loss, it is something very different. Absolutely. Yeah. So when it comes to fitness, right? One really big important aspect of it is, of course, your diet. So what if I were to ask you, what is that one secret item that you really like having, which is your secret ingredient and which you really love? So what would that be? So see, this is what I love. It's an egg. Okay. And why do I love it? Yes. So scientifically, the biological value of egg is considered to be 100. तो जो भी हमारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं, या जो भी हमारे अच्छे सोर्सेज हैं, उनके हिसाब से अगर मैं प्रोटीन को कंसीडर करूं, तो जितने भी आपके मीट हो गए, डेयरी हो गए एंड ऑल, दे आर बिलो द बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ 100. सो आई लव एग्स, एंड एग इज समथिंग व्हिच नॉर्मली अ वेजिटेरियन आल्सो ईट्स, अ नॉन वेजिटेरियन आल्सो ईट्स, and it will never harm you unless and until it is rotten, or maybe some coming from some XYZ sources and all. So egg is a staple food for me 12 months a year. And yes, it is something which will give you the maximum possible impact in terms of your overall health. That's what I have realized in my 21 years. So Rajat, I just wanted to ask you this. It's a scenario that I'll give you. Let's suppose
me and a friend of mine are coming to you for some fitness advice. You're a fitness coach, obviously. And let's say both of our objectives are really different. I am someone who wants to put on muscle, who wants to put on weight, whereas he is someone who really wants to lose weight. So, what is that advice, that common advice that you give to both these sets of people? So Rishabh, you just said a word, want, but it doesn't mean whether you need it or not, right? So there is a difference between what you want and what your body needs. तो एक अच्छे एक्सपर्ट का काम यही होता है कि पहले वो ये जज करे कि आपको एक्चुअल में क्या जरूरत है. यू माइट नॉट हैव टू गेन वेट और योर फ्रेंड माइट नॉट हैव टू लूज वेट बिकॉज ये आपकी चाहत है. लेकिन आपकी चाहत क्या पता आपकी बॉडी नहीं चाह रही हो, आपकी बॉडी क्या बोल रही हो. तो एक्सपर्ट यही जज करता है कि आपके पास लाइफस्टाइल से, आपकी मेडिकल हिस्ट्री से, आपके पास वर्कआउट रेजिमे से, आपकी ईटिंग हैबिट से, आपके स्लीपिंग पैटर्न से, ओवरऑल लाइफस्टाइल का जो आपका प्लान होता है, रेजिमे होता है, उसके बेसिस पे एक एक्सपर्ट यही जज करता है कि एक्चुअल में आपका गोल क्या होना चाहिए. बट यस, एट द वेरी एंड it is up to you or maybe your friend ki still if you want to go for your want or you want to go for your need. बिकॉज आप भी अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले आप डायग्नोज करते हो कुछ भी चीज कि भाई एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम के हिसाब से ही मेडिकेशन या उसका रिकमेंडेशन दिया जाता है. बट हमें फिटनेस में हम क्या करते हैं, हम अपनी चाहत पे जाते हैं. हम ये नहीं चाहते कि हम डायग्नोज नहीं करते हमारी बॉडी चाह क्या रही है. सो दिस इज समथिंग एवरीबडी नीड्स टू नो. बहुत सारी फीमेल्स भी मेरे पास आती है, इनफैक्ट मेल्स भी आते हैं कि आई विल कोट एन एग्जांपल कि एक 53-54 इयर्स की फीमेल आती है. शी वाज वेरी लैंकी, वेरी वेरी लैंकी, और मतलब शी हैड नथिंग इनसाइड हर बॉडी. तो उसने मेरे को बोला सर मेरे को ना 3-4 किलो वेट लूज करना है. बट I was not surprised because this is the common thing every girl wants. But there should be something to lose also, na? First of all, you can't lose your skin weight, right? You can't lose your bone weight. You can't lose your organs weight. ये तीनों चीजें होती हैं वो सबसे ज्यादा हैवी होती है बॉडी में. उसके बाद जो वेट आता है वो हमारा मसल्स का आता है, और सबसे लाइट जो होता है वो होता है फैट, राइट? अब आप तीन चीज को चेंज नहीं कर सकते, आपको खेलना तो दो ही चीज से है, मसल से और फैट से. अब क्या होता है, मसल्स अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी नहीं है और उसके बाद भी आप वेट लॉस करना चाहोगे तो बॉडी वेट लॉस कहां से करेगी? उसका तो ये तरीका यार, अपना या तो कोई एक ऑर्गन निकलवा लो या कोई अपना एक लिम्ब खत्म करवा लो. दिस इज द ओनली थिंग, राइट? बिकॉज स्किन भी आप चेंज नहीं कर सकते. And if you will lose too much of muscles, your body will be in the negative phase, because muscle is an active component for the body. Muscle हमारी body में काम करता है. Fat is the stored calories. ठीक है? तो rather than seeing कि हमारा weight loss कितना हो रहा है, we should be focusing on whether we are healthy and fit from inside, and whether we are losing fat up to a certain extent so that the visible difference is good, and we should feel good from inside also, whether we are feeling good from inside also, right? So this is the thing. So आपको भी और आपके फ्रेंड को भी ये जानने की ज्यादा जरूरत है कि आपको चाहिए क्या. उसमें भी बहुत सारे असेसमेंट होते हैं जो हम एक एक्सपर्ट होने के नाते करते हैं. जी बिल्कुल सही कहा आपने. Also, since we're on the subject of weight loss, right? There are a lot of queries that usually come up on Google. You know, a lot of people Google करते हैं कि the fastest way to lose weight, for example. तो इसके आप, what is your view on this? Is there a process by which you can actually kind of in 1 month kind of lose a lot of weight, or is there something that this is something you have to really put in the effort and wait for the results to show, that is the normal process, or is there a shortcut to this process? Okay, so let's keep an aspect कि आपको वेट लॉस करना है या नहीं करना है, ये चीज को अभी हम साइड में कर देते हैं, राइट? हम ये सोचते हैं कि एक क्लाइंट को या किसी भी एक इंसान को वेट लॉस करना ही करना है बिकॉज ऑफ हिज मेडिकल कंडीशन, राइट? तो नाउ हाउ द प्रोसेस विल गो. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहा है पहले से और वो एक अच्छा वर्कआउट और न्यूट्रिशन पैटर्न फॉलो करना स्टार्ट करता है, then definitely in the initial phases the body will give the maximum of results. Why is it so? Because हमारी बॉडी ना एक चेंज पे काम करती है.
कोई भी हम अपनी बॉडी को जो चेंज प्रोवाइड करते हैं ना, उसकी बेसिस पे बॉडी की अडेप्टेबिलिटी चेंज होती है एक स्पेसिफिक चीज से। सो बॉडी अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करती है और उसके लिए वो बहुत सारी चीजों को अंदर से चेंज करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉडी को पता है कि पिछले मैंने एक हफ्ते के अंदर एवरी डे मैंने 300 to 400 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न करी है, राइट? तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी अपना मेटाबॉलिक रेट फास्ट कर लेगी और बॉडी को पता है कि अब मुझे इतनी कैलोरीज बर्न करनी है और उस हिसाब से उसको एडेप्टेबल बना देगी। इनडायरेक्टली वो क्या करेगी? अपना स्ट्रेंथ और स्टैमिना और एंड्योरेंस बढ़ा देगी। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो व्हेन अनलेस एंड अंटिल द एडेप्टेबिलिटी कंडीशंस हैपन, वो चीज अचीव नहीं होती। अब वेट लॉस करने के भी दो तरीके होते हैं। पहला तरीका और दूसरा तरीका, क्या फर्क है? आजकल लोग दूसरा तरीका ज्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि पहले तरीके में मेहनत बहुत है। पहला तरीका क्या है कि अपने आप को एक अच्छे वर्कआउट के प्लान में इन्वॉल्व करना। दूसरा तरीका क्या है? अपने खाने को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देना। जैसे हम लोग बोलते हैं, मैं उसी का एग्जांपल लेता हूं कि वेट लॉस हैपेंस ओनली विद द कैलोरी डेफिसिट, राइट? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अपने कोर्स में सिखाने वाला हूं लोगों को कि कैलोरी डेफिसिट एक्चुअल में क्या है। एक तरीका हो गया कैलोरी डेफिसिट का कि आप 2000 कैलोरी खा रहे हो और आपने अपनी कैलोरीज कम करके 1600 कैलोरीज कर ली और आपने 400 कैलोरी का डेफिसिट कर दिया, राइट? if your goal is to do only weight loss, you are not thinking about anything of your fit and healthy body, then उस 400 कैलोरी के बेसिस पे बॉडी अडेप्ट करना शुरू कर देगी और वेट लॉस करना शुरू कर देगी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक। नाउ कंसीडर द पहला वाला सिनारियो जहां पे आपको वर्कआउट करना होता है। अच्छा, अब उसमें क्या है? आई पर्सनली प्रिफर द पहला वाला सिनारियो। व्हाई इज इट सो? 2000 कैलोरीज हम इनटेक कर रहे हैं, लेट्स टेक द सेम एग्जांपल, और हमने अपने इनपुट में, फूड इनपुट में कोई चेंज नहीं करा, बट ऑन कॉन्ट्रेरी वी आर स्पेंडिंग 400 कैलोरीज ऑन द वर्कआउट, which is actually making our body, our joints, our muscles, our mind, everything fit. ठीक है? जब हम वर्कआउट करेंगे हमारे मसल्स एक्टिव होंगे, हमारे बॉडी के हार्मोन्स अच्छे होंगे, फील गुड फैक्टर मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, बॉडी अच्छी होगी, मसल्स डेवलप होंगी, फैट लॉस होगा, ठीक है? बट इनडायरेक्टली हमने कैलोरी डेफिसिट उससे भी अचीव कर लिया, ठीक है? बट व्हाई पीपल डोंट चूज द फर्स्ट मेथड? ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि उसमें मेहनत है। हम कम खाना खा लेते हैं, हमें लगता है हमारा वेट लॉस हो गया, लेकिन इनडायरेक्टली हम ना अंदर से वीक हो जाते हैं। जबकि आप अगर पहला वाला प्रोसेस फॉलो करोगे तो आप अंदर से स्ट्रांग भी होगे, आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, आपकी वर्कआउट कैपेसिटी भी बढ़ेगी, आपका जो वर्क प्रोफाइल है उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो ये एक ऐसी चीज है जो जितने भी वेट लॉस करने वाले लोग करते हैं, वेट लॉस या जिसको भी फॉलो करते हैं, उन्हें ये चीज पे खास ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूं इसमें। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये भी मैं बताने वाला हूं अपने कोर्स में, कि बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी देखा होगा कि लोग बहुत सारे रेजोल्यूशंस लेते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, बट विद इन 10-15 डेज या मैक्सिमम 20-25 डेज में ना वो बैकआउट कर जाते हैं। ऋषभ, कभी आपने सोचा है क्या ऐसा क्यों होता है? नहीं, मेरे साथ खुद भी हुआ है एक्चुअली। यू नो व्हाई इट हैपेंस? ठीक है, हम ना अपनी गाड़ी को ना पहले दिन से चौथे गियर में चलाना शुरू करना चाहते हैं। सो व्हाट हैपेंस, जब हम एनरोल करते हैं या हम कोई एक रेजोल्यूशन लेते हैं या कोई भी हम लोग चीज फॉलो करने की कोशिश करते हैं स्पेसिफिकली रिलेटेड टू जिम, तो होता क्या है, हम पहले दिन ही बहुत सारा वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं और पहले दिन से ही डाइट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मेरे को बता दो, मेरे को क्या डाइट फॉलो करनी है। बॉडी हमारी ऐसी काम नहीं करती, पता है क्यों? अब आप देखो, जो मैंने आपको पहले के 2 सिनारियो बताए थे, अब ये उनका दोनों का मैच हो गया। यू गेटिंग माई पॉइंट? हमने वर्कआउट भी अच्छा कर रहे हैं और हम अपनी डाइट भी कर रहे हैं। अब क्या होगा, जहां पे बॉडी 2000 कैलोरी खा रही थी और उसके बाद उसने क्या, आपने 400 कैलोरी कम भी कर दी और 400 कैलोरी बर्न भी कर दी, तो जहां आपको 1600-1700 कैलोरी मिलनी चाहिए, वहां आपको 1200 कैलोरी मिल रही है। अब 1200 कैलोरी में बॉडी 1 दिन 2 दिन, क्योंकि बॉडी के पास अपनी स्टोर्ड ग्लाइकोजन और स्टोर्ड एनर्जी भी होती है, राइट? तो स्टोर्ड एनर्जी भी होती है, बॉडी में फैट डिपॉजिट भी होता है, जो फैट इज एक्चुअली द स्टोर्ड एनर्जी।
तो जब तक बॉडी में वो चलता रहता है, जब तक आपकी एनर्जी बनी रहती है, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है, क्योंकि आप हर दिन 800 कैलोरी यूज कर रहे हो बॉडी की, ठीक है, अब हर दिन अगर आप 800 कैलोरी यूज कर रहे हो तो एक स्टैग्नेशन पॉइंट डेफिनेटली आ जाएगा, जहां पे आपको लगेगा यार मेरे को तो बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को बहुत ज्यादा लेथार्जिक फीलिंग हो रही है, मेरे से काम नहीं हो पा रहा और मैं अपने वर्क पे फोकस नहीं कर पा रहा, मेरे को पूरे दिन नींद आती रहती है, बिकॉज बॉडी को तो नींद आएगी ना, बॉडी ने अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर लिया, अपने सारे फंक्शन स्लो कर लिए, इसीलिए लोग उस चीज को छोड़ देते हैं। इसके बदले अगर वो पहले एक्सरसाइज को अडेप्ट करें, 2 से 4 हफ्ते वेट करें कोई न्यूट्रिशन पैटर्न फॉलो करने का, बॉडी को एक लेवल पे लेके आए जिससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो, बॉडी का ओवरऑल फंक्शनिंग अच्छा हो, उसके बाद अगर कोई डाइट प्लान फॉलो करते हैं तब वो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बजाय कि वो पहले दिन से ही चौथे गियर में गाड़ी चलाना शुरू कर। So, if I were to summarize, you will say that there is no smart work in this. सिर्फ pure hard work रहता है इसमें, No, right? there is smart work also, but smart work के लिए ना आपको बहुत सारी डेडिकेशन और आपको उस लेवल की एक्सपर्टीज प्लस आपको उस लेवल का बनना पड़ेगा. So there is always a beginner level, intermediate level, advanced level. बिगिनर लेवल पे हम भी जानते हैं, पहले भी हमें भी एबीसीडी काखा ही सिखाया गया था. तो पहले आप एबीसीडी काका घा तो सीखो, उसके बाद आप स्मार्टनेस पे जाओगे. स्मार्टनेस के लिए भी आपको बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए, राइट? तो जब तक आपके पास वो नॉलेज नहीं होगी तब तक आप स्मार्टनेस दिखा नहीं पाओगे. स्मार्ट होने की लोग कोशिश करते हैं ना, वो आजकल जो फैट डाइट चल रही हैं, कीटो डाइट और एटकिंस डाइट, जीएम डाइट, वो उन्हें लगता है दे आर वेरी स्मार्ट. 2-3 महीने उन्होंने किया, उनका 5-10 किलो गिर गया, बॉडी अंदर से खोखली हो गई, पता नहीं है क्या है. जहां पर वो 10 किलो जिम में उठा रहे थे वहां 5 किलो ही उठा पा रहे हैं, या नॉर्मल अपना हैंड बैग भी नहीं उठा पा रहे. आई हैव सीन गर्ल्स कि बस दे आर हैप्पी विद देयर वेट लॉस, और अगर उन्हें से छू दो ना तो दे विल फॉल. That's how it is. Nobody wants to be like this, and in fact you should never be like this. This is the thing. So smart ways are there, but you should be smart to follow those ways. Right, absolutely. So if I were to say that work smart ka jo scenario hai, that actually does it apply in the case of Bollywood celebrities, because they, let's say if they have a movie coming up in 3 months and they really need to in 2 months do some magic and get a great body, so that would apply in that case, right? ऋषभ, आप एक काम करो, मैं आपको समझता हूँ आप एक सेलिब्रिटी हो, आप अपने पास 24 घंटे का न्यूट्रिशनिस्ट रखो, आप अपने पास 24 घंटे का ट्रेनर रखो, आप अपने पास 24 घंटे का शेफ रखो, आप अपने पास 24 घंटे का आपके ऊपर नीचे के काम करने वाला सारा बंदा रखो. यू हैव 8 to 10 people working with you for the entire day. What you have to do, you just have to work out morning and evening for 1 hour or 2 hours and take rest and eat. You don't have to do anything else. What will happen? Your body will definitely give results, क्योंकि उसके पास उसके अलावा करने को कुछ है ही नहीं. Here what we are doing, we are earning money also, we are taking care of the family also, we are thinking of expanding our business also, we are taking care of ourselves also. So ये सारे factors को आप क्यों भूल जाते हो? ठीक है, they are getting paid for a specific role and they have to play smart in that. और जितना अगर उन्हें मिल रहा है उतना आपको भी मिलना शुरू हो जाए, आप भी बोलोगे मैं 10 लोग लाऊंगा, you will also get results. I'm damn sure and I can just 100% say that ऋषभ, आप भी वैसा बन जाओगे, because आपके पास ना कुछ और सोचने को नहीं होगा. हमारा माइंड बेस्ट तब काम करता है जब वो फ्री होता है, and mind और body का connection is very important. So I think you got the answer of my question, answer of your question. So interestingly, you mentioned about diet while we were talking about all this. So like before the show, we were discussing about how diet, nutrition, and dieting are 3 completely different things. So could you just throw some light on what these terms are and how they are different from each other? So nutrition is the intake of macro and micronutrients in the body. So nutrition is nutrients and sources. This is called nutrition, जो हम खा रहे हैं. Diet is a pattern, as a specific pattern which we are following from morning till evening, right? Dieting is something we are trying to reduce, or maybe we are trying to follow a customized or specific plan according to the specific goals. देखने में तीनों चीजें सेम लगती हैं, सुनने में तीनों चीजें सेम लगती है, लेकिन there is a hidden and in-depth difference जो मतलब अगर आप इसमें काफी टाइम से हो वो तभी आपको समझ में आएगा.
So all the three words are different. We cannot just put diet in terms of dieting. We cannot just put nutrition in terms of dieting. Everything is different. Okay, that's really interesting what Rajat has mentioned. I hope the viewers are really taking note of this because this is some important information for you all. Rajat, अभी आपके journey पे थोड़ा आते हैं. Like I mentioned earlier that you were someone who started at a really young age and you really knew that fitness was your passion at one point of time. अभी आप एक level पे पहुंच गए हो जहाँ पे आप Instagram पे you have more than 140K followers on your profile. So how have you managed to gain these many followers and have you figured out the fitness influencer game as they call it, and do you follow any particular influencers and are you impressed by their work, or are you someone who does things just by yourself and you're like aage dekhte kya ho jayega? What is your exact if I would say strategy when it comes to Instagram? So as of now, I was not following any strategy. मेरे को जो डालना होता था मैं वही डालता था. And if you'll just go through my profile and if you'll just see all my posts are basically of three types. One is knowledge based. Second is based upon my personal workout and what I do, what kind of transformation I've done for myself. Three, related to the athletes which I have prepared over the years, their transformation and their journey. Apart from it, no ifs and buts, no bullshits, nothing I put up till now, because yes, I believe it's always good to be natural in terms of कि भाई आप real कहते हैं ना real life से मेरे को कभी ना attraction नहीं हुआ ऐसा कि मैं स्पेसिफिकली कोई चीज कर रहा हूं एक स्पेसिफिक वीडियो के लिए और उसके बाद उसको पोस्ट कर रहा हूं. अप टिल नाउ व्हाटएवर आई हैव डन नेचुरली, जिसका अच्छा भी बना बुरा भी बना, मेरे को अगर मन है कि मुझे इसका पोस्ट डालना है या मुझे इसकी स्टोरी डालनी है, आई हैव पुट इट. सो देयर वाज नॉट नो स्ट्रेटजी एज सच एज ऑफ नाउ, बट लेट्स सी इन द फ्यूचर हाउ इट्स गोना हैपन. Cool. All right. So, talking about your experience, right? Like you mentioned, it's been a really long journey so far. And like I mentioned, you've represented India at a lot of powerlifting events at a global level. You've been a European powerlifting champion. You've been a winner of Muscle Mania. So tell us a little bit about your journey, and your experience in these particular events, these global events. मेरे साथ ना एक बहुत अच्छी बात पता है क्या हुई. मेरे साथ एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि मैंने ना अपने आप ये नहीं सोचा कि मुझे यहाँ पे जाना है. So some experienced people picked me, and they told me you should go for it. You will do good in this. But I was always receptive. For example, in 2014, मैंने जहां से A certification किया था, वहां के mentor ने मेरे को बोला कि you should go for stage competitions and all. मैंने कहा यस ठीक है, if you are saying I'll go for it because I'm very receptive. आज मुझसे आप बोलोगे ना कि मैं जाके गिल्ली डंडा भी खेलना सीख लूं, मेरे को बहुत बड़ी खुशी होगी because मुझे सीखने का बहुत शौक है. तो I went for it. Within a year I won Muscle Mania, the regionals and all, and in the nationals I was at 3rd place. And I could not go to the international level because उस समय there were some financial issues in terms of each and everything कि मैं उतना नहीं कर पा रहा था. I had to go to US for that. And after that, in 2017, again one of the very good coaches of India, he told me that you should do powerlifting because your frame is like powerlifting. बहुत बड़ा frame है, अच्छा frame है, और powerlifting करके तुम्हारी muscle enhancement और होगी. मैंने कहा सर ठीक है, जैसा आप बोलो. I started powerlifting and within a year I became European Championship. Next year I became 2 times European Championship and then 2 times World Championship also. I set up the world record also. और मैंने Best Lifter in the World Championship for deadlift का award भी जीता in 2018 in England Derby. So it just went like that. अगर उसी के बदले में ये कर लेता, नहीं यार क्या इससे मिलेगा करके क्यों मैं करूंगा, या मैं अपनी जगह ही ठीक हूं, या मुझसे इतना नहीं हो पाएगा, तो शायद मैं वो नहीं कर पाता. It happened only because I was receptive. So whenever an athlete or maybe a student और जो भी मेरे पास कोई किसी चीज के लिए आता है या मेरे से इंस्टाग्राम पे भी पूछते हैं कोचिंग के लिए, तो मैं उनसे यही कहता हूँ, मेरे को ना आपसे बस 3 चीजें चाहिए.
First is receptiveness, second is your sacrifice, and third is your patience. अगर आपके पास ये तीनों चीजें है ना, तो बाकी की लगन तो आप में अपने आप ही आ जाएगी। बिल्कुल। I just wanted to ask you this also that आपके पास, like you mentioned, there are a lot of male clients as well as female clients who come. So you are also someone who's really involved in the female category, which is you are also a bikini prep coach, right? So इस category के आपको आपको क्या कहना है इस बारे में? Because there are a lot of people, lot of women especially, who have this stigma or this thing about bodybuilding. So आप उनको क्या कहेंगे? What is your message to them? तो आपको तो एक मेल से ज्यादा ही अपने आप का ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज आपको अपने फैमिली का भी ध्यान रखना है, पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है, अपने हस्बैंड का भी ध्यान रखना है, अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है। आदमी के पास तो केवल पैसा कमाने का टेंशन होता है, अगर देखा जाए तो, अकॉर्डिंग टू द इंडियन सोसाइटी, राइट। लेकिन आप लोगों के पास पूरी फैमिली का टेक केयर करने की जरूरत होती है। कोई बीमार पड़ जाए तो आप टेक केयर करते हो, क्योंकि मेल्स तो घर में रहते नहीं है, ठीक है। किसी को कोई एक्सीडेंट हो जाए तब आप उसके साथ रहते हो, उसकी सेवा करते हो। अगर हस्बैंड टेंशन में घर आ रहा है तो आप उसको थोड़ा सा टेक केयर करते हो। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के मेडिसिन का ध्यान रखते हो, उनके टाइम का ध्यान रखते हो, कब उन्हें खाना देना है, कब उन्हें क्या चाहिए, घर में ग्रोसरी आनी है, मेड्स को मैनेज करना है, एवरीथिंग यू टेक केयर, राइट। So when you just take out 1 or 1.5 hour for yourself, you will be relaxed. You will be having a stress-free mind, and yes, you will be able to perform better with all these things. तो वो जब तक आप करोगे नहीं, आपको वो समझ में नहीं आएगा फीमेल्स। तो आपको ये बहुत जरूरी है कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखो। अब वो पुराने जमाने चले गए जब औरतें जो है घर में बैठे बैठे बस उनका एक काम था, खाना और बच्चों का ध्यान रखना और बाकी सब चीजें देखना, और घर में मोटी होती चली जाती थी, होती चली जाती थी। फिर एक टाइम ऐसा आता था, दे आर अनएबल टू मूव आफ्टर द एज ऑफ 50-55। कभी किसी को हिप लॉक हो गया, कभी किसी का नी लॉक हो गया, कभी किसी को शोल्डर इम्पिंजमेंट हो गया। तो वो इसीलिए होता है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एक्टिविटी। Right, absolutely. So, Rajat, if I have to ask you कि अगर आपका करियर आज शुरू हो, आपकी फिटनेस जर्नी आज शुरू हो compared to 20 years back, what would you do differently today if you were to start your journey today? पहले क्या था ना, जब हम अब मैं जिम का एग्जांपल लेता हूँ। जब हम जिम जाते थे ना, तो हमारे दिमाग में ना कोई गोल नहीं होता था। हमारे दिमाग में ये होता था कि 1-2 घंटे जिम में जाना है और अच्छे से वर्कआउट करना है, मसल्स अपने आप बन जाएंगी। हमें ये नहीं होता था हमें 3 महीने 6 महीने में या 1 साल में कुछ ऐसा अचीव करना है या कुछ करना है। हाँ, सोचते तो थे कि यार बॉडी कब बनेगी, बॉडी कब बनी, इन अ वेरी लेमन टर्म आई एम टॉकिंग हियर। तो लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता था कि नहीं, अगर 3 महीने में नहीं हुआ सर तो हम आपके पैसे नहीं देंगे, या हम आपसे ट्रेनिंग नहीं लेंगे। एंड ऑल्सो वो स्टिपुलेशंस नहीं होती थी, तो माइंड फ्री होता था और बॉडी डबल रिस्पॉन्ड देती थी। टाइम लिमिट्स नहीं होती थी। और फिटनेस का मतलब ही ये है कि आप उसको एक लाइफस्टाइल की तरह करो। 24 घंटे में से 2 घंटे आपके अपनी बॉडी के लिए होने चाहिए, बाकी 22 घंटे में तो कुछ भी करो यार। तो आज के टाइम में क्या है, ये चीज बहुत बदल गई है कि लोग जब जाते हैं ना तो एक्सपेक्टेशंस बहुत लेके जाते हैं। वो ये नहीं देखते, मैंने बताया ना, वो बॉडी की नीड नहीं देखते, वो वांट देखते हैं। ठीक है, आप अपनी वांट लेके जाओगे ना तो वो वांट वांट ही रह जाएगी, बिकॉज आपको पता ही नहीं है आपकी नीड क्या है। बॉडी गिव्स रिजल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स, इट डजंट गिव रिजल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वांट, राइट। आई वांट टू बी आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर टुडे, बट डू आई नीड इट, right? I Yeah. want to be Arnold Schwarzenegger today, but would I be able to do it? Would I be able to eat like that? Would I be able to train like that? Would I be able to live a lifestyle like that? You just have to see all those things ना। अब मेरे से भी बहुत लोग कहते हैं कि सर आपके जैसी बॉडी बनानी है, या सर आपके जैसी नॉलेज लेनी है। अब मैं उनसे अगर ये बोलूंगा यार आप ठीक है अपने आप को 20-21 साल दे दो, आपको भी हो जाएगा ऐसा, वो दे विल बी लाइक ज़ॉम्बीड, राइट। दे विल बी ज़ॉम्बीड, अरे सर ने ये क्या बोल दिया। बट दैट्स द हार्श फैक्ट। आप कोई जॉब भी करते हो तो 8-10 साल में एक अच्छे लेवल पे कंपनी में पहुंचते हो। कुछ कुछ लोगों को तो 12-15 साल लग जाते हैं, ठीक है ना। तब जाके वो कहीं मैनेजर लेवल पे या कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में या उसमें पहुंचते हैं। अपनी बॉडी से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार वो एकदम से बहुत अच्छी हो जाए, आप आर्नल्ड बन जाओ या ऋतिक रोशन बन जाओ। इट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल।
So Rajat, thanks for sharing all that information. We're almost at the end of this show. I would really like अगर आप अपने viewers को बताएं कि what is your course on Graphy all about? Okay, so whatever we have spoken today, it's basically on that only कि न्यूट्रिशन वाकई में क्या है, आपकी नीड क्या है, पहले आप उसको जानो, ठीक है। आप क्या चाहते हो वो बाद में अपने आप हो जाएगा। आपको अपनी बॉडी को समझने की जरूरत है। जिस दिन आपने अपनी बॉडी को समझ लिया, आप वेट लॉस, वेट गेन, फैट लॉस, मसल बिल्डिंग, स्ट्रेंथ गेनिंग सब कुछ कर सकते हो। वो टाइम जो आप अपना दोगे ना, कहते हैं ना इमारत की नींव अच्छी होनी चाहिए, तभी जो है आप उस पर और ज्यादा फ्लोर्स बना सकते हो। तो वो नींव यही है। जब आप उस नींव को अच्छा कर लोगे तो बाकी सारी चीजें बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से सॉल्व हो जाएगी। तो कोर्स में मेरा ये बताने का मतलब यही है कि आप अपने आप को कैसे पहचानो, अपनी डाइट कैसे डिजाइन कर पाओ विद द हेल्प ऑफ ओनली द अवेलेबल सोर्सेज। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे आजकल जो डाइटिशियंस हैं वो क्या कर रहे हैं, या एक्सपर्ट्स हैं वो क्या करते हैं, ब्रोकली खा लो, एवोकाडो खा लो, ठीक है, या XYZ कुछ और, आई एम जस्ट मिसिंग दैट, वो आप खा लो। बट you should be considering the fact broccoli or avocado is not an Indian according to the Indian environment, ठीक है। आप उस आपकी बॉडी इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट देगी आपको। आप फॉलो तो ओवरसीज यूएस का यूके का प्लान आप फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको अवेलेबल वो सोर्सेज उस लेवल के हैं ही नहीं। and then how your body will accept those sources, because from the childhood only you were not designed to accept those sources। तो जो अवेलेबल सोर्सेज हैं उसमें मैक्सिमम हम कैसे अपने रिजल्ट्स को अचीव करें, अपना प्लान कैसे कैलोरी बेस्ड, न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट बेस्ड बनाएं। अगर मसल बिल्डिंग करनी है तो कितनी कैलोरीज एक्स्ट्रा खाएं, कितना प्रोटीन एक्स्ट्रा खाएं। अगर आपको वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है, किस तरीके से हम डेफिसिट में जाएं सो दैट हमारी बॉडी वीक भी ना हो और हमें रिजल्ट भी मिल जाए। सो दिस इज द होल आइडिया अबाउट दिस कोर्स। सो इफ यू विल जॉइन दिस कोर्स देन डेफिनेटली आपको कुछ एक ऐसा चीज डिफरेंट मिलेगा जो आपने शायद ही किसी एक्सपर्ट से या किसी डाइटिशियन से सुनी हो। Because I'll be focusing mainly on the goal dependent nutrition. I will not be focusing on the weight loss nutrition, right? So as per I mentioned, dieting is different, diet is different, and nutrition is different. So इसके बेसिस पे ही ये पूरा कोर्स डिजाइन है। और न्यूट्रिशन के साथ साथ फिटनेस वर्कआउट को या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को हम कैसे एसिमुलेट करें, उसका भी एक छोटा सा ओवरव्यू मैं इस कोर्स में दूंगा। Fantastic. I really do hope that people join this course and get the maximum benefit out of it. Could you tell us your experience of being on the show, Rajat? How was your experience? I actually felt great, and the best part is कि मेरे पास बहुत कुछ है बताने को। Seriously, I have a lot of things to share, but yes, we have limited time constraint and all, but that's why I want people to join this course and the upcoming courses also। आपने जो एक बात बोली थी ना कि फीमेल रिलेटेड जो भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, या उन्हें टैबू होता है, या स्टिग्मा होता है, या कुछ भी ऐसी चीज होती हैं, so maybe in the next course I'm announcing it over here, I will be focusing on how females should train। This will be my next course, but yes, ये कोर्स तभी आपको सक्सेसफुली आप कंप्लीट कर पाओगे जब आप न्यूट्रिशन के बारे में पूरा जान लोगे। तो you need to understand the nutrition thing, then only we will be switching to the female training thing, and बहुत सारे और courses आएंगे, so I'm just announcing the next course as of now। बिल्कुल बिल्कुल. One last thing before I let you go. What is that one piece of advice that you would like to share, for someone who just wants to be like you and, who considers you as an inspiration, wants to get into this field and, reach at the level that you have reached? तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? इन्फ्लुएंसर्स बेस पे अगर मैं बोलूं तो सी इन्फ्लुएंसर कुड बी ऑफ एनी टाइप। कोई भी आप फिटनेस की टिप दे दीजिए, लोगों को पसंद आती है, पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग, ठीक है।
लेकिन अगर आप एक एक्सपर्ट के बेसिस पे जाना चाहते हो या आप एक कोच के बेसिस पे जाना चाहते हो, देन फर्स्ट ऑफ ऑल द बिगेस्ट एडवाइस इज यू स्टार्ट टू वर्क ऑन योरसेल्फ. जब तक आप अपने आप पे काम नहीं करोगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपको किसी दूसरे पे काम कैसे करना है. सेकेंडली, यू नीड टू बी अंडर अ गुड एक्सपर्ट ऑल्सो. ठीक है, एक अच्छे कोच, एक अच्छे एक्सपर्ट के नीचे रहो, बिकॉज देयर इज अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज. अच्छा कोच आपको वो सारी चीजें बताएगा जो एक रिजल्ट ओरिएंटेड वर्कआउट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए जरूरी होती है. बिकॉज बुक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बुकिश मैटर होता है और उसको हमें रियल लाइफ में रिजल्ट नहीं मिलता. फॉर एग्जाम्पल, हम जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं 11th 12th 10th क्लास में, उसका हमारा रियल लाइफ में कोई यूज नहीं हो पाता. इसी तरीके से कुछ हमारे फिटनेस में भी ऐसी चीज होती है कि वो जो रियल टाइम सिनारियो होता है और जो बुकिश लैंग्वेज होती है उसमें बहुत फर्क होता है. सो इफ यू वांट टू गो इन anything related to fitness, you should understand the basics behind it, and yes, definitely you should be under a good expert or coach. Absolutely. Rajat, thank you so much for sharing all the valuable information that you have and you have accumulated over the course of your career. It was an absolute pleasure to have you with us on the show and sharing all your advice. Thank you so much. Thank you Yep. so much. It was nice to be on this platform, and yes, definitely we are going to do some more sessions in the future too. Well, that was it, ladies and gentlemen, from our side. We had a wonderful conversation with Rajat. We will definitely be back with some more talented creators, or in our terms, graphers. Until then, if you are a creator who wants to grow your audience, monetize your skills, or host live based cohort courses, then Graphy is the place to be. Simply put, be a creator on Graphy.